So in today's lecture, we are going to discuss the CART model. We have already covered the ID3 model and the C4.5. Now today we will be covering the CART model plus random forest. So there are other topics also that will be covered in the following lectures. I want to cover linear SVM. So because in syllabus it is written that we need to discuss linear models, so I was thinking that I should cover linear SVM also, both the hard and soft SVM. So I will be discussing that in the next lecture. Plus I want to discuss the KNN because KNN implementation is written using the rapids in the syllabus. So I want to cover theoretically also. So these two lectures will be these two topics will be covered in the next lecture. Then we will be moving on to the boosting techniques. So boosting will be discussed that what it is. Plus we will be covering the XGBoost model. So these two will be covered in the subsequent two lectures. So this will be the next lecture and this will be the next lecture. So these few topics are left and then we will be done with this unit 2 and this unit 2 plus unit 1 which we have already covered and unit 6. So I was looking at the syllabus. In syllabus, unit 6 is regarding the ANN and neural networks. So I have covered most of them. I have already covered the CNN, RNN. I have already covered these two topics in detail in the initial lecture. So I will be covering few topics regarding this also. So unit 1, 2 and 6 will be coming in the MST syllabus. So I was thinking that I should tell you before time so that you can prepare well. So these are the few topics that we will be having in the MST syllabus as well as for the quiz also. As soon as I complete these topics, I will take your quiz 1 plus the MST syllabus will be these topics unit 1, 2 and 6. So I wanted to discuss this before starting the lecture. Starting with the topic, let's discuss the CART model. CART model is is an extension after the C4.5 model. तो इसमें classification हो रही है. The full form is classification and regression tree. ठीक है, and it was given by this person to refer to the decision tree algorithms that can be used for both of them. Plus, obviously, it can do categorical and continuous. Both the things can be done. And mainly this works on Gini index. So this Gini index matrix is one of the major metric to work on if we want to work on CART model. C4.5 में क्या था and ID3 में क्या था? Can you tell me quickly? ID3 was information gain, right? Information gain किस में था? इसी में था. Entropy and information gain हम इसमें करते होते थे. C4.5 में क्या था? Gain ratio? Yes or no? These were the metrics to take the decision कि हमें node क्या बनानी है, root node क्या बनानी है, and then we have to split. So based on that thing, continuing from there, we have to work on Gini index for getting the work done on CART model. So Gini index क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं. So Gini index, this concept was given by one of the economics person, and इसमें इन्होंने क्या किया था? He wanted to graphically represent the distribution of income and wealth within the population. और उसमें कुछ ऐसा curve था that this was the ideal number that income कितना है, ठीक है, and population कितना है, income and population. तो उसमें उन्होंने बोला कि जितना आइडियल नंबर से आप दूर होगे, so that will be the gap of disparity between the population and income. तो जितना ये कम गैप होगा उतना आइडियल है. सो दिस वाज द बेसिक आइडिया. लॉरेंस कर्व इसका नाम था. लॉरेंस कर्व ग्राफ परसेंटेज ऑफ द graph the percentage of the population against cumulative income or wealth of people at or below the percentile. So Lorentz curve is often accomplished by a straight diagonal line with a slope of 1. तो जो आपको बताया है ये ऐसा कर्व है, ठीक है, and it looks like this. तो Gini index is based on this idea. It is saying कि ये वाला
जो गैप है ये कम होना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। द एरिया बिटवीन द स्ट्रेट लाइन एंड द कर्व लाइन expressed as ratio of the area under the straight line as Gini coefficient, and this is a upon a plus b, जिसमें a, if a is equal to 0 Lorentz curve coincides with the perfect line, तो इसमें Gini coefficient will be 0। ठीक है, ऑब्वियसली अगर न्यूमरेटर 0 हो गया तो अपना ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाएगा। एंड इफ माई दिस कर्व coincides with the x एक्सिस, तो ये कह रहे हैं कि आपका जो ये लॉरेंस कर्व है ये वाला लाइन इज एक्चुअली कोइंसाइडिंग विद द एक्स एक्सिस, तो ये पूरे का पूरे खराब हो गया। ठीक है, तो इस केस में आपका 0 हो जाएगा, 0 नहीं 1 हो जाएगा, बिकॉज a विल बी 1 इन दैट केस, सो कोफिशिएंट इज 1 एंड देयरफॉर 0 इज द आइडियल वैल्यू फॉर द गिनी कोफिशिएंट। तो जितना कम हो उतना अच्छा, मतलब गिनी कोफिशिएंट जब आप कैलकुलेट कर रहे हो, जितना स्मॉल नंबर होगा उतना बेटर होगा। ठीक है, हेंस द स्मॉलर वैल्यू इज बेटर in the distribution. So in machine learning, Gini coefficient measures the inequality between the cumulative features and the target values. तो यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है, cumulative features and the target value। तो एक तरह का x versus y का कर्व है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी बात हो रही है। In other words, it measures the degree of impurity, that is the degree to which a feature is misclassified, and the formula says that Gini coefficient is equal to 1 minus summation probability of each value whole square. So probability is the ith label ka probability and n are the number of labels. Gini coefficient of SA subset hota hai jaise S, so SV upon total S multiplied by Gini coefficient of that subset. So SV is the set of rows in S, तो पूरे डेटा सेट में S है, नंबर ऑफ सबसेट्स में SV है, तो उसकी बात हो रही है। दिस लुक्स फेमिलियर, ऐसा कुछ हमने पहले भी किया हुआ है। ठीक है, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द गिनी कोफिशिएंट। algorithm says that we have to do these things initially। आप all the basic conditions जो ID3 वाली थी कि अगर एक नोड है तो उसको एज इट इज दे दो, अगर सबका लेबल कॉमन है तो वो सबका कॉमन लेबल दे दो, तो वो सब था। उसके बाद फिर सेकंड पॉइंट में है दैट वी हैव टू फाइंड सच दैट द गिनी कोफिशिएंट फ्रॉम स्प्लिटिंग ऑन ए। पहले तो आप सबका निकालोगे बेस्ड ऑन वन एट्रीब्यूट, आप कोफिशिएंट निकालो एंड उसमें से एक एक करके जो आपने गिनी कोफिशिएंट निकाला है बेस्ट वाला चूज करोगे विद द लोएस्ट गिनी कोफिशिएंट, उसको नोड बना दोगे और फिर रिकर्जन चलेगा, वन बाय वन स्प्लिट हो जाएगा। सो लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल। तो यहाँ पे एक ये एग्जांपल है दैट बेस्ड ऑन दिस वेदर डेटा सेट यू नीड टू डिसाइड दैट इफ यू शुड प्ले गोल्फ, यहाँ पे गलत लिखा है, इट शुड बी टेनिस। ठीक है, इफ यू शुड प्ले टेनिस, तो आपके पास ऐसा कुछ डेटा सेट एंड यू वांट टू make the decision based on this cart model। So let's look into these things feature by feature। So गिनी इंडेक्स पहले पूरे डेटा सेट का निकाल लो, इट विल बी 1 माइनस दिस थिंग। तो इसका फॉर्मूला को अगर आप सॉल्व करोगे, सो वन सेकेंड, इट इज़ अ मैट्रिक फॉर क्लासिफिकेशन ऐसा करके, इन द फर्स्ट स्टेप वी विल कंपेयर द गिनी इंडेक्स ऑफ ईच एट्रीब्यूट। ठीक है, अब हम वन बाय वन निकालते हैं। सो लेट्स से हमें आउटलुक का निकालना है। देयर आर थ्री थिंग्स इन आउटलुक, सनी, ओवरकास्ट एंड रेन। बेस्ड ऑन दिस फार्मूला 1 माइनस समेशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज का स्क्वायर था, तो 2/5 होल स्क्वायर, 3/5 होल स्क्वायर, तो पॉजिटिव नेगेटिव का सब्ट्रैक्ट कर दिया, वैल्यू आया 0.48। सिमिलरली ओवरकास्ट रेन का ऐसे आया, अलग अलग आया तीनों का। सो वी विल कैलकुलेट द वेटेड सम। तो वेटेड के लिए ऑब्वियसली हमें काउंट देखना पड़ेगा कितने कितने इंस्टांस हैं, सनी वाले 5 हैं, ओवरकास्ट वाले 4 हैं, रेन वाले 5 हैं। सो वेट डिपेंडिंग ऑन दैट वेटेज अपना कंबाइंड गिनी कोफिशिएंट आया है 0.342। सिमिलरली आप बाकियों का निकालो, टेम्परेचर का निकालो 0.439 आ गया, ह्यूमिडिटी का निकालोगे 0.367 आया, विंड का आया 0.428, तो वो 0.34 वाला बेटर है। ठीक है, आउटलुक वाला। सो जितना छोटा उतना अच्छा। तो इसमें गिनी इंडेक्स लोएस्ट आया है आउटलुक का, सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग द आउटलुक एज द बेस्ट फीचर टू डू द स्प्लिट। तो अगर एक बार आउटलुक से स्प्लिट हुआ, तीनों का अलग अलग टेबल बन जाएगा एंड देन यू हैव टू कंटिन्यू विद द सेम थिंग। तो इस बार आप क्या करोगे, आप जैसे आउटलुक का तो हो गया, फिर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, तो आप सनी के अंदर जाके फिर मतलब इसका देखोगे कि हमें आगे स्प्लिट कैसे करना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल द सबसेट इज लाइक दिस। तो ओवरकास्ट का तो हर बार ये ऐसे ही था, तो सनी और रेन रह गया। ठीक है, सो सनी वाला देख लेते हैं पहले। सनी वाले में 3 नो हैं, 2 यस हैं।
and based on that सनी का आउटलुक इक्वल टू सनी एंड टेम्परेचर इक्वल टू हॉट कूल माइल्ड, तो तीनों का निकाला, वेटेड निकाला, 0.2 आया। सिमिलरली बाकियों के साथ निकाला, जो भी बेस्ट आया उसमें से बेस्ट आया अपना अपना ह्यूमिडिटी का। सो वी नीड टू वर्क विद दिस ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी वाले के साथ फिर स्प्लिट कर देंगे सनी के साथ, तो सनी आती, ह्यूमिडिटी स्प्लिट हुआ। तो बेस्ड ऑन दैट हमें आइडिया हो गया कि हमें कैसे स्प्लिट करना है। विल नॉट एक्सप्लेन द फुल न्यूमेरिकल, बट आई होप यू हैव गॉट द आइडिया, ठीक है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, आपका ये फाइनल ऐसे बन जाएगा। सो this was about the cart model and I hope you have understood how the split is being done, हमें कैसे decision लेना है, because this thing we have been doing in ID3 as well as the C4.5 मॉडल। तो ये स्प्लिट करना हमें आता है, हमें बस गिनी इंडेक्स निकालना आना चाहिए। 1 - समेशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज आपके सामने हमने वो निकाला था एंड वी टुक द डिसीजन एवरी टाइम, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द कार्ट। नाउ आई विल मूव टू द रैंडम फॉरेस्ट। सो रैंडम फॉरेस्ट के बारे में देख लेते हैं क्या होता है, कैसे होता है। सो रैंडम फॉरेस्ट का एनीवन कैन एनीवन टेल मी द एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, क्या आप जानते हो? फॉर एग्जांपल इतना तो पता है कि डिसीजन ट्री इज नॉट परफेक्ट, उसमें बहुत हमारी कमियां थी, ओवरफिटिंग के लिए हमें प्रूनिंग करना पड़ता था, या फिर हमें उसमें सारी नॉइज डाटा को इंक्लूड करके वो सब कुछ हमें बनाना पड़ता था। तो बेस्ड ऑन दोज थिंग्स वी नीडेड बेटर थिंग, ठीक है। डिसीजन ट्रीज आर नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू बिल्ड। अगर आप डिसीजन ट्री के बेसिस पे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, इट इज़ नॉट इफेक्टिव कंपेयर टू रैंडम फॉरेस्ट। हमेशा रैंडम फॉरेस्ट जीतेगा बिकॉज इट इज़ ensemble. So can anyone tell me that what do you know about random forest quickly? You can write in chat or you can speak up. हाँ जी। So random forest may first of all it is built from decision tree and it combines the simplicity that decision tree had but makes it more flexible. तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या कुछ है। Random forests are built from decision trees and they are easy to build. Decision trees are easy to build, easy to use, easy to interpret. But in practice, they are not so good. According to this book, The Bible of Machine Learning, trees have one aspect that prevents them from being the ideal tool, namely inaccuracy. Decision trees में inaccuracy होता है because either they try to overfit, either they are having lots of depth. तो उसमें वो हर चीज को बहुत डेप्थ में ले जाता है, फिर उसको हम प्रून करते रह जाते हैं। तो इट इज़ वेरी टाइम टेकिंग, प्लस वो हर फीचर को हर वैल्यू को सेट करने की कोशिश करता है। तो एक तरह का वो इफ एल्स लगा के पूरी चीज को हैंडल कर रहा है। दैट बिकम्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग अगर आपके नंबर ऑफ फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं। सो ऑल द वेरिएंट्स ऑफ डिसीजन ट्रीज हैव द फॉलोइंग लिमिटेशंस। दे वर्क ग्रेट फॉर द डाटा used to create them but they are not flexible when something new comes up. तो आप ट्रेनिंग और वैलिडेशन डाटा सेट के ऊपर तो ठीक कर लोगे, बट टेस्ट डाटा सेट जिसको कभी देखा नहीं है, इट विल नॉट परफॉर्म वेल एंड दे आर वेरी कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव, ठीक है। उसमें बहुत सारे हमारे ट्रेनिंग एग्जाम्पल आ जाएंगे तो वो लगा रहेगा अपना बनाने में, और इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम टू जस्ट ट्रेन दैट मॉडल। रैंडम फॉरेस्ट क्या करता है? इट कंबाइंस द सिंप्लिसिटी, इट इज इन सैम्पल लर्निंग मेथड एंड इन सैम्पल लर्निंग का मतलब है that it is the process by which multiple models such as classifiers are strategically combined and generated to solve particular computational। अब यहाँ पे देखो दो चीज हो रही हैं। एक तो ये हो रहा है कि रैंडम फॉरेस्ट में हम स्प्लिट करके अ, एक ही डेटा सेट का बूटस्ट्रैप डेटा सेट बनाएंगे। मल्टीपल बूटस्ट्रैप क्या होता है? आई विल कम टू दैट इन सम टाइम, बट हम मल्टीपल ट्रीज जनरेट करेंगे, ठीक है। एंड आफ्टर गेटिंग द मल्टीपल ट्रीज जनरेटेड तो हम उनके आउटपुट्स लेंगे उनके थ्रू, that what is it trying to say when we give a task to do the classify or regression। तो end में वो उसका voting या average करेगा। If it is classification it will do the voting according to the mode of the class, it will do the job। plus अगर regression है तो वो mean ले लेगा, average निकाल लेगा उन values की जो उसकी prediction जा रही हैं। So this is something that looks like a random forest. It is having multiple decision trees and through all of them you have to pass that value, output आएगा उसका average या mod ले रहे हो तो आप उसके basis पे करोगे। Let's look at the this algorithm. I will explain this now.
So in this algorithm, what we are saying is we have a training set having n examples and d dimensions. D dimensions का मतलब फीचर अपने पास d नंबर है, मतलब नंबर ऑफ फीचर्स हमारे d हैं, एंड नंबर ऑफ रोज हमारे हैं n. ठीक है, तो इनिशियली अपने पास ये डेटा सेट है जिसमें रोज n है, कॉलम्स d हैं. ठीक है, एंड उसके बाद वी वी विल ट्राई टू डू दिस फॉर b इक्वल टू 1 टू b ट्रीज मल्टीपल. जैसे हमने ट्रीज बनाने हैं, मैंने बोला था एक बूटस्ट्रैप ट्रीज बनाएंगे, तो बूटस्ट्रैप लेट्स से हमारे पास b है, तो नंबर ऑफ ट्रीज लेट्स से हम b नंबर ऑफ ट्रीज बना रहे हैं. ड्रॉ ए बूटस्ट्रैप सैंपल z स्टार ऑफ साइज n. तो बूटस्ट्रैप क्या होता है मैं आपको पहले बता देता हूँ यहाँ पे. द नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज अपने पास सपोज n है डेटा सेट में. बूटस्ट्रैप डेटा सेट जो होगा, बूटस्ट्रैप सैंपल होगा, लेट्स से अपना जेड स्टार है और मे बी Z1 Z2 ऐसे करके अपने पास मल्टीपल बूटस्ट्रैप सैंपल्स हैं. तो उसमें नंबर ऑफ रोज विल बी n एवरी टाइम. ठीक है, अब कोई पूछेगा कि सर हमारे पास अगर यहाँ पे n है तो हम ये भी n बना रहे हैं, तो फिर फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ दैट यू कैन स्किप मे बी दिस वन रो एंड मे बी आप इसका डुप्लीकेट बना दोगे, इसका डुप्लीकेट यहाँ पे डाल दोगे. तो आप रिपीट कर सकते हो बूटस्ट्रैप सैंपल बनाने के लिए. यू कैन रिपीट द रो, यू कैन स्किप फ्यू रोज. तो सपोज आपने पहला और थर्ड एंड फोर्थ वाला रो स्किप कर दिया कि मुझे ये वाला डालना ही नहीं है, तो आप फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ को ही डुप्लीकेट बना बनू के 5 टोटल पूरे कर दोगे, अगर 5 हुए, n 5 हुआ तो देख लेते हैं क्या हो रहा है. फॉर अब यहाँ पे इतना तो पता चल गया कि मुझे बूटस्ट्रैप सैंपल बनाना है, और कैसे बनाना है वो भी मैंने आपको बता दिया कि आप डुप्लीकेट रो ले सकते हो. सो ग्रो ए रैंडम फॉरेस्ट ट्री TB to the bootstrap data by recursively repeating few things. So these are the three things we need to follow. Based on that, ये वाला फर्स्ट हमारा जो बूटस्ट्रैप सैंपल था उसके बेसिस पे वी हैव टू जनरेट ए डिसीजन ट्री. तो जितने सैंपल बनाए थे उतने आपके डिसीजन ट्री अलग अलग बनेंगे. 4 हैं तो 4 डिसीजन ट्रीज बनेंगे. ठीक है, तो करना कैसे? सिलेक्ट m वेरिएबल्स एट रैंडम फ्रॉम द d वेरिएबल्स वेयर m इज वेरी स्मॉल देन द d. ठीक है, अब देख लेते हैं. ग्रो ए रैंडम फॉरेस्ट ट्री बाय रिकर्सिवली रिपीटिंग. ओके, step until the minimum node size and minimum is reached. Number of nodes हमारे कम से कम होने चाहिए. Select m variables at random. Variable मतलब हम इसमें से जो हमारा ये d था, अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम n में से कम चीजें लेके डुप्लीकेट ले रहे थे. ये सिलेक्ट m वेरिएबल्स एट रैंडम का मतलब है कि आपके सपोज नंबर ऑफ कॉलम्स वर d, आप इनमें से कुछ ले लो. जैसे अगर 4 हैं तो 4 में से 2 ले लो. ठीक है, पूरे 4 कॉलम नहीं लेने, 2 कॉलम को उठाओ एंड देन ये तो सिलेक्शन हो गया. उसके बाद पिक द बेस्ट वेरिएबल टू डू द स्प्लिटिंग. तो आप इन दो वेरिएबल, दो कॉलम्स के बेसिस पे आप कैलकुलेट करो उसका आपका गिनी इंडेक्स, जो भी आप करना चाहते हो. इन्फॉर्मेशन गेन ले सकते हो, गेन रेशियो ले सकते हो, गिनी इंडेक्स ले सकते हो. यहाँ पे अपने पास फ्रीडम है. यू कैन वर्क अकॉर्डिंग टू ID3 और C4.5 और कार्ट मॉडल. इट इज रैंडम फॉरेस्ट इज वैलिड फॉर ऑल द 3 वेरिएशंस. तो डिपेंडिंग ऑन आप ID3 ले रहे हो तो आप गेन रेशियो लोगे, C4.5 ले रहे हो तो गेन नहीं, इन्फॉर्मेशन गेन लोगे इन ID3, गेन रेशियो इन C4.5. तो अगर आप कार्ट मॉडल के बेसिस पे रैंडम फॉरेस्ट बना रहे हो, यू विल टेक द गिनी इंडेक्स. तो बेस्ड ऑन दैट जो भी आप लेना चाहते हो, सपोज आपने गिनी इंडेक्स चूज किया, you have to select the column out of these two which is having the lower Gini index. ठीक है, तो जस्ट अभी हमने पढ़ा था इसलिए मैंने इसका एग्जांपल लिया है. स्प्लिट द नोड इनटू द डॉटर नोड्स. तो इसमें हुआ क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट वन डिसीजन ट्री. एक डिसीजन ट्री की बात कर रहे हैं जिसको हमने Z1 बूटस्ट्रैप डेटा सेट से बनाया था. एंड विद इन दैट 4 में से हमने 2 कॉलम पिक करे, उन 2 कॉलम में से हमने डिसीजन ले लिया, लेट्स से अपना ये वाला जीत गया. तो इसके बेसिस पे आपने लिया हम अपना डिसीजन, सपोज सेकंड कॉलम के बेसिस पे, एंड दैट सेकंड कॉलम के बेसिस पे आपने स्प्लिट कर दिया. उसके बाद फिर आगे का कंटिन्यू रहेगा इन दैट इन ऑल द B1 to B ट्रीज. तो जितने भी आपने ट्री बनाने थे बूटस्ट्रैपिंग के, तो Z1 Z2 Z3 जितने भी आपके ट्री थे सारे सबके लिए ये वाला .1 आपको कवर करना है. एंड आफ्टर दैट वंस ऑल द ट्रीज आर मेड, तो जैसे एक ट्री बन गया जी, ये ऐसे करके एक ट्री बन गया. ठीक है, जिसका कुछ ऐसा आर्किटेक्चर है. सेकंड ट्री आपने बनाया, आपका सेकंड ट्री कुछ ऐसा बन गया. ठीक है, मे बी एक और यहाँ पे लगा तो थोड़ा अलग हो जाएगा.
उसके बाद आपने एक और बनाया, आपका वो डेटा सेट ने कुछ ऐसा ट्री बना दिया। तो बेस्ड ऑन दीज 3 ट्रीज आप तीनों से क्लासिफिकेशन करवाओगे। लेट्स से इसने बोला क्लास 1, इसने बोला क्लास 0, इसने बोला क्लास 1, तो मेजॉरिटी अपना 1 की है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दैट आपका आउटपुट देना पड़ेगा आपको। मोड ले लोगे अगर आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो एंड इट विल बी मीन अगर रिग्रेशन कर रहे हो। एंड आई होप द बेसिक कंसेप्ट इज क्लियर हम यहाँ पे जो कर रहे थे। सो दिस काइंड ऑफ ensemble मेथड जो जिसमें हम बहुत सारे बूटस्ट्रैप सैंपल्स को यूज कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड बैगिंग, ठीक है, और बूटस्ट्रैप एग्रीगेटिंग। तो दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड बैगिंग। अगर आपको किसी ने पूछा बैगिंग क्या होता है, बैगिंग में हम बूटस्ट्रैप सैंपल्स के बेसिस पे मीन या फिर मोड ले रहे होते हैं, बेस्ड ऑन विच वी हैव टू मेक द डिसीजन इन रैंडम फॉरेस्ट। तो आई होप ऑल द टर्म्स आर क्लियर। रैंडम फॉरेस्ट क्या होता है, बूटस्ट्रैप सैंपल क्या होता है, बैगिंग क्या होता है, एंड बूटस्ट्रैप एग्रीगेटिंग इज अनदर नेम फॉर बैगिंग। So moving ahead, so let's say we have this example. Now we just saw that अपने पास अगर ऐसा करके ओरिजिनल डेटा सेट है, इफ यू मैच इट विद द नेक्स्ट दिस डायग्राम, इसमें 210 वाला नहीं है, ठीक है, ये वाला यहाँ पे हटा दिया गया है, और ये फोर्थ वाले के डुप्लीकेट बना दिया गया है। 167 टू टाइम्स है। प्लस अब आपको डिसीजन मेकिंग करनी है, तो सपोज आप ये वाले दोनों को उठा लो। अब इन दो कॉलम्स के बेसिस पे आप अपना गेन रेशियो निकाल लो, ठीक है, जिसका लोअर होगा उसको आप बना दोगे, जो भी आपने उसको बनाना है, उसका स्प्लिट बनाना है, तो उसके बेसिस पे आप डिसीजन ट्रीज बनाने शुरू कर लोगे। सो द डिसीजन ट्री इज क्रिएटेड फ्रॉम द बूटस्ट्रैप डेटा सेट बट ओनली यूज ए रैंडम सबसेट ऑफ वेरिएबल्स। तो रैंडम सबसेट ऑफ वेरिएबल्स वही है कि मैंने बोला 4 में से 2 उठा लो। फॉर एग्जाम्पल इन फिगर शोन इन नेक्स्ट स्लाइड we will consider 2 variables at each step, though there is a method to determine optimal number of variables। तो हम 2 वेरिएबल के बेसिस पे कर रहे हैं, बट इसमें भी हम देखेंगे कि हमें ऑप्टिमल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने लेने हैं, ठीक है। अभी के लिए हम 2 ही लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस ओरिजिनल डेटा सेट का, मतलब ओरिजिनल नहीं बट बूटस्ट्रैप डेटा सेट का जिसमें 167 वाला डुप्लीकेट है, इन दिस वी आर टेकिंग द 2 कॉलम्स जिसके बेसिस पे वी वांट टू मेक द डिसीजन। तो आपने सेकंड एंड थर्ड वाला कॉलम देखा, गुड ब्लड सर्कुलेशन एंड ब्लॉक्ड आर्टरीज, इसका आपने चेक किया, ठीक है। तो आपने जब इसका चेक किया कि किसका बेटर आ रहा है, फॉर एग्जांपल गुड सर्कुलेशन का बेटर आया गिनी स्कोर, सो आपने उसको नोड बना दिया, रूट नोड, एंड देन यू विल अगेन चूज 2 आउट ऑफ द रेस्ट ऑफ द 3 फीचर्स। तो 4 में से एक तो लग गया यहाँ पे रूट नोड पे, बचे हुए 3 में से आप रैंडमली 2 लो, फिर से उन दोनों में से चेक करो कौन सा जीतेगा। तो जो भी जीता ऐसे करके आप डिसीजन ट्रीज बनाओगे और मल्टीपल बना लोगे। ये तो सिर्फ एक बना बाय द एंड, यहाँ पे आपके पास जो ये बना है, तो ये बूटस्ट्रैप डेटा सेट 1 का बना है। सो दिस इज डिसीजन ट्री 1, ठीक है। तो ऐसे करके सपोज आपने 10 ट्रीज बनाए, तो आपके वो 10 के 10 कुछ आउटपुट देंगे, या 100 बनाए, जितने भी बनाए, तो ऐसे करके मल्टीपल ट्रीज बने होंगे, उसके बेसिस पे आपने आउटपुट लिया, मेन या मोड ले लोगे। द सेकंड स्टेप इज दैट फर्स्ट गेट ए न्यू पेशेंट। तो अब यहाँ पे देखते हैं ensemble ऑफ ट्रीज का क्या मतलब है, यहाँ पे वो बैकएंड पे वर्क कैसे करे, जो मैंने बोला कि आप उसका मोड ले रहे हो, ठीक है। तो ये मोड का एग्जांपल है। सो लेट्स सी दैट व्हाट्स हैपनिंग यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अपने को इसका आउटपुट देना है, ठीक है, कि गिवन दीज वैल्यूज व्हाट विल बी द आउटपुट। तो आपने ट्री के बेसिस पे डिसीजन लिया, तो लेट्स से इसने बोला कि इस बंदे को हार्ट डिजीज है, 1 आ गया, ठीक है। एंड सेकंड वाले ट्री ने बोला कि हाँ जी मेरे हिसाब से भी 1 है, थर्ड वाले ने बोला मेरे हिसाब से भी 1 है, फोर्थ वाले ने बोला मेरे हिसाब से 0 है। तो बेस्ड ऑन दैट 3-0 हो जाएगा, या फिर यहाँ पे जैसे बना हुआ है कि 5-1 हो जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन किसका ज़्यादा वैल्यू है, यस का या नो का, आप डिसीजन ले लोगे। तो जैसे 3-0 तो 3 वाला हो जाएगा ना, यस हो जाएगा। तो बेस्ड ऑन दैट ऐसे इंसेंबलिंग हो रही है, यहाँ पे आप मोड ले रहे हो वैल्यूज का मल्टीपल डिसीजन ट्रीज से कैलकुलेट करवा के। अब यहाँ पे ना एक और छोटी सी चीज है, दैट हाउ विल यू कैलकुलेट द एक्यूरेसी ऑफ रैंडम फॉरेस्ट। सो इट कैन बी डन यूजिंग समथिंग कॉल्ड आउट ऑफ बैग डेटा सेट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सिंपल है, दैट लेट्स से मेरे पास एक डेटा सेट था ओरिजिनल, जिसमें 5 रोज थे। आपने थर्ड और फोर्थ को यूज नहीं करा, और इन तीनों को यूज करके इन तीनों के बेसिस पे आपने बैग वो क्या होता है बूटस्ट्रैप डेटा सेट बना लिया, ठीक है। दिस इज बूटस्ट्रैप डेटा सेट 1। एंड मे बी सेकेंड टाइम आपने क्या किया, सेकेंड टाइम आपने सेकेंड एंड थर्ड को यूज नहीं किया, एंड 1
4 एंड 5 को यूज करके आपने एक बूटस्ट्रैप बना लिया 1 4 5 का, ऊपर वाला था 1 2 5 का। तो दोनों केस में 3 यूज नहीं हुआ, यहाँ पे भी 3 मिसिंग है और यहाँ पे भी 3 मिसिंग है, तो आउट ऑफ बैग डेटा सेट में 3 चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड आउट ऑफ बैग डेटा सेट। जो चीज एक भी बार रिपीट नहीं हुई, जैसे 3 वाला ना इसमें आया, फर्स्ट बैग बूटस्ट्रैप में भी नहीं आया, सेकंड वाले में भी नहीं आया, तो जो बच गया वो आउट ऑफ बैग है। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड आउट ऑफ बैग। सो व्हाइल क्रिएटिंग ए बूटस्ट्रैप डेटा सेट, मेनी एंट्रीज आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द बूटस्ट्रैप डेटा सेट। टिपिकली अबाउट 1/3 ऑफ द ओरिजिनल डेटा डज नॉट एंड, क्योंकि आप रैंडमली चूज कर रहे हो तो फिर वो रैंडमली एन तो फिल कर देगा, नंबर ऑफ रोज उतने आ जाएंगे, बट जनरली इतना बताया गया कि in practice 1/3 of the original dataset बच जाता है। And the entries which are not included in any of the bootstrap dataset are called out of bag, जो आपको बताया। The proportion of the out of bag samples are incorrectly classified in the out of bag error। तो obviously out of bag dataset में अगर आपका suppose 10 entries था, उन 10 में से 3 का गलत आउटपुट आया, जब आपने चेक किया, आपने रैंडम फॉरेस्ट के बेसिस पे आपने कैलकुलेट किया मोड वगैरह, और 7 का ठीक आया। तो यहाँ से पता चल रहा है कि यार मेरा एक्यूरेसी इज 70%। ठीक है, तो यहाँ से रैंडम फॉरेस्ट का पता चल रहा है। दिस इज कॉल्ड आउट ऑफ बैग एरर। आउट ऑफ बैग एरर इज 30% हेयर, काफ़ी हाई है। उसके बाद अब हमें रैंडम फॉरेस्ट को इम्प्रूव करना है। वी नीड टू डू सम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। तो हाउ टू डू दैट, हाउ टू डिटर्मिन द ऑप्टिमल नंबर ऑफ फीचर्स। मैंने बोला था कि आपने 4 में से हर बार 2 लेना है, तो 4 थे, 4 में से 2 लिए सेकंड और थर्ड, सेकंड वाले को बना दिया रूट। अब बचे हुए 1 3 एंड 4 में से रैंडमली 2 सिलेक्ट कर लो, सपोज 1 एंड 4 सिलेक्ट हुआ। ठीक है, अब 1 एंड 4 के बेसिस पे सपोज 1 जीत गया, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे इनिशियली 2 था, तो फिर बचे 2 और 4, तो 2 और 4 में से आप ले लोगे। तो ये हम 2-2 की गेम खेल रहे थे, बट 2 की बजाय 3 भी तो ले सकते थे, या मतलब अगर डेटा सेट बड़ा होता तो 4 भी तो ले सकते थे। ठीक है, तो उसकी बात हो रही है कि आप इसको कैसे सिलेक्ट करोगे, दैट हाउ टू डिटर्मिन दिस ऑप्टिमल नंबर ऑफ फीचर्स, कि हमने 2 लेने हैं, 3 लेने हैं, 4 लेने हैं, कितने कॉलम उठाने हैं एक बार में, जिसको हमने कंपेयर करवाना है। सो कंसीडर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ऑप्टिमल नंबर वैल्यू फीचर्स। ये कह रहा है कि भाई 2 भी ले लो, 3 भी ले लो, 4 भी ले लो, 5 भी ले लो, 6 भी ले लो, 7 भी ले लो, ऐसे करके रैंडमली अपने बेसिस पे कर लो। उसके बेसिस पे आप एक बार करके देख लो, जो जो आंसर भी बेस्ट हुआ, यू कैन टेक दैट एज द ऑप्टिमल नंबर। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है, जिसमें बहुत सारा कंपटीशन लग जाएगा। कंप्यूट द आउट ऑफ बैग एरर फ्रॉम ऑल द आउट ऑफ बैग सैंपल्स। तो उसी की बात हो रही है कि आपने 2 3 4 मल्टीपल टेक्निक्स लिए, उसके बेसिस पे आपने आउट ऑफ बैग एरर सबका निकाला, एंड यू कैन डू दिस। तो चूज द वैल्यू of optimal number for which the out of bag error is minimum। तो the process is मतलब थोड़ा सा समझने में आसान है, but it is time consuming। You can take 2 features at a time, 3 at a time, 4 at a time, 5 at a time। ऐसे 4 को सिलेक्ट करो, इन 4 के बेसिस पे डू सम प्रेडिक्शन, और आप आउट ऑफ बैग एरर निकालो, जिसका मिनिमम आएगा आप उसको सिलेक्ट कर लो कि 2 लेने हैं, 3 लेने हैं, 4 लेने हैं, 5 लेने हैं। उसके बाद फिर उसके बेसिस पे ही आगे काम करो। एक तो ये तरीका हो गया फॉर गेटिंग द ऑप्टिमल नंबर। कुछ और हुआ तो आप अपने आप ढूंढो और मेरे को भी बता देना, ठीक है। मेरे हिसाब से ये वाला तो है ही है। उसके बाद हाउ टू डिटर्मिन द नंबर ऑफ ट्रीज द एल्गोरिथम बिल्ड्स। तो अब यहाँ पे उसकी बात हो रही है कि हमने जो डिसीजन ट्री बनाने हैं, या फिर हमने वो बूटस्ट्रैप सैंपल लेने हैं, तो कितने लेने हैं, ठीक है। तो वो 10 होने चाहिए, 20 होने चाहिए, 100 होने चाहिए, 1000 होने चाहिए, कितने। तो उसकी बात हो रही है, इन जनरली हायर नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीज द परफॉर्मेंस एंड मेक द प्रेडिक्शन मोर स्टेबल, बट इट ऑल्सो स्लोज डाउन द कंपटीशन। ऑब्वियसली आपको 10-20 बनाने जल्दी हो जाएगा, 1000 बनाने टाइम लगेगा। दिस पैरामीटर also is also computed using the same steps discussed in the point 1। तो ये कह रहा है कि यार इसमें भी आप ना क्या करो, 10 20 30 50 ऐसे करके लेके मल्टीपल वैल्यूज टेस्ट कर लो, अगर आपको जिसके बेसिस पे बेस्ट रिजल्ट आ रहा है उसको उठा लो। थ्योरेटिकली तो काफ़ी अच्छा टेक्निक है, बट प्रैक्टिकली इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। उसके बाद सो विच फीचर्स टू सिलेक्ट एट ईच स्टेप। ठीक है, यूजुअली द फीचर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम। ये उसी की बात हो रही है कि आप जैसे 2 ले रहे हो, 4 ले रहे हो, तो उन 2 में से भी कौन से लेने हैं, ठीक है। अब 4 में से वी नीडेड टू टेक 2 आउट ऑफ 4, तो वो 2 कौन से होंगे उसकी बात हो रही है। यूजुअली फीचर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, बट वी कैन ऑल्सो कंप्यूट द कोरिलेशन। अब देखो, कोरिलेशन वाला थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैंडल।
ठीक है। अगर आपके पास हाई कोरिलेशन है सेकंड और थर्ड वाले में, तो आप दोनों ये लेके भी क्या कर लोगे, ठीक है। तो उसके बजाय आप एक को ड्रॉप कर दो कि भाई 3 तो नहीं लेना, 2 के बजाय 2 के साथ मैं 1 या 4 में से ही लूंगा, 3 को नहीं लूंगा। तो एक तो कोरिलेशन के बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो। वी मस्ट ऑल्सो चेक द कोरिलेशन बिटवीन द फीचर्स एंड द आउटपुट वेरिएबल। तो ये कह रहे हैं कि आप एक टारगेट वैल्यू के साथ भी चेक करो कोरिलेशन, कि टारगेट वैल्यू के साथ क्या आ रहा है। मतलब अगर इसका कोरिलेशन इसके साथ अच्छा आ रहा है तो ऑब्वियसली फिर मैं इसको लूंगा 2 वाले को। अगर अच्छा नहीं आ रहा, उसके उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं कर रहा, फिर क्या फ़ायदा, ठीक है। क्योंकि हमारा टारगेट वैल्यू तो होना चाहिए ना, मतलब टारगेट वैल्यू के लिए दैट टू शुड बी कंट्रीब्यूटिंग। तो इट इज सेइंग दैट वी नीड द फीचर्स दैट हैव एटलीस्ट सम प्रिडिक्टिव पावर, जो कंट्रीब्यूट करे वहाँ हमारा आउटपुट देने में। सो एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस ऑफ रैंडम फॉरेस्ट। Random forest classifier has improved accuracy over the decision tree. Why? Random forest often achieves higher accuracy than the single tree, and this is due to the reason, इसमें क्या हो रहा है, वो क्रॉस वैलिडेशन कर रहा है बैक एंड पे। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप मल्टीपल बूटस्ट्रैप डेटा सेट्स ले रहे हो, फिर आप उसकी एक्यूरेसी ले रहे हो, फिर आप उसका मीन या मोड ले रहे हो, तो काइंड ऑफ क्रॉस वैलिडेशन हो रहा है, इसलिए इट इज परफॉर्मिंग बेटर। एंड दे आर कंप्यूटेशनली इनएक्सपेंसिव इन ए वे, बिकॉज यू आर कंसिडरिंग अ सबसेट ऑफ फीचर्स एट ईच पॉइंट। अगर आपके पास 4 फीचर थे या 5 थे, आप एक टाइम पे दो दो लेके काम कर रहे हो, आप इकट्ठे 5 नहीं ले रहे हर बार। तो कंपेरेटिवली इट इज फास्टर देन द, बिकॉज ऑफ दिस रीजन वो थोड़ा सा कंप्यूटेशनली इनएक्सपेंसिव है कंपेयर टू डिसीजन ट्री, जो हर बार पूरे के पूरे फीचर्स लेके चलता है हर बार। Though it needs to generate large number of trees, which will slow you down, but it will increase the accuracy also, क्योंकि बैकएंड पे क्रॉस वैलिडेशन हो रहा है, हम सारे फीचर्स एक बार में नहीं ले रहे, एंड वोटिंग वोटिंग करवा के हम कर रहे हैं क्रॉस वैलिडेशन में, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दीज रीजंस हमारा एक स्टेबल आंसर आएगा, स्टेबल एक्यूरेसी आएगा, रेदर देन डिसीजन ट्री के बेसिस पे जो भी आप ले रहे हो सिंगल डिसीजन ट्री पे। And also it gives us the feature importance, so it gives us the ranking of the importance of variables. So random forest I have implemented personally also, and we can we in a way गिनी इंडेक्स के बेसिस पे हमारे पास रैंकिंग आ जाता है, ठीक है, कि किसका सबसे कम है किसका ज्यादा, तो वो रैंकिंग आ गया अपने पास। द फर्स्ट स्टेप इज मेजरिंग द फीचर इंपॉर्टेंस इन द डेटा सेट, is to random is to fit a random forest in the data during the fitting process out of bag error। तो ये आप देख लेना, सब कुछ वही लिखा हुआ है जो मैंने अभी बताया, कि आप अपने नंबर ऑफ फीचर्स कम ले रहे हो, उसके बेसिस पे फिर आप वन बाय वन उसका रैंकिंग भी देख रहे हो, उसका गिन इंडेक्स के बेसिस पे आपका आ जाएगा उसमें। So random forest classifiers are also used to handle the missing values. So for handling the missing values, there are multiple things. देखते हैं, whenever there is some missing value in the training data, random forest applies the following general technique. It makes initial guess and gradually refines the guess. Initial bad guess can be the mode of for the categorical feature and mean for this. Um, the guesses are refined by finding the samples which are similar to one with। तो इसमें मिसिंग का एक एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे ना अभी एग्जांपल आएगा। Similarity, okay, so we need to understand this this thing, this process, then only we will be able to do some work on the missing वाला part। ये proximity matrix की बात हो रही है यहाँ पे। ये कह रहे हैं कि build a random forest and run all the data down all the trees। note that not the samples, note the samples that end up in the leaf node। तो leaf nodes का एक track रखो, keep track of the similar samples using the proximity matrix। तो leaf nodes के ऊपर आप proximity matrix लगाओगे, then divide each entry in the proximity matrix with total number of trees। use the proximity value to make better guesses about the missing data, that is calculated weighted frequency of each value using the proximity value। तो इसको देख लेते हैं practically क्या हो रहा है यहाँ पे। किस, if there is a missing value, let's say at these 2 points there are 2 missing points, right? So out of these 4 examples, this is example number 1, 2, 3 and 4. So we want to do the prediction for this 4th example. So we have some missing points. So the basic tendency is that in case it is binary problem, yes or no, so we can take a mode, and here majority is no, so we can fill a no. And similarly on the on this weight column,
we can take the median, and median is after sorting the mid value. So the sorting is already done. Mid value is 180. So 180 has been copied at this point. So this is how the basic prediction has been done, and now we will try to improve it based on the proximity matrix. But before that, we will have to generate the random forest. So let's say based on our predictions of this no and 180, I mean we have filled these two values, and then we can generate the random forest, right? Now just by using this thing, using this data, we can generate a random forest, and there will be multiple random forests made. So there will be a proximity matrix that will be made, which will connect all the points, all the 4 points. So there were 4 columns, right? The chest pain, good blood circulation, blocked arteries, and weight. And in this, we are what we are doing is we are filling a proximity matrix. So for all the 4 columns, there is this matrix of n into n, which is 4 into 4 in our case. So there are 4, because there were 4 features, so we have to make 4 into 4 matrix. And in this, let's say for this example where we have 1, it means that first feature and the fourth feature ended up on the same leaf node once out of all the random forest trees. So let's say that there were 10 trees that were built in the random forest. There were 10 samples that were built, and 10 times the decision tree was made. And out of those 10, only once it happened that 1 and 4 ended up on the same leaf node. And similarly, 3 and 4 ended up on the same leaf node 8 times out of 10. So this is the proximity matrix, which means this thing. So this is how the proximity matrix is made. And after that, we have to calculate the kind of probability. So what have to be done is that, let's say we will be dividing each proximity value by the total number of trees, right? And assume that we have 10 trees. So for all this matrix, the basic values will be divided by 10, every value, and it will give us this 0.8 at this place. So 0.1, 0.1, 0.8. So there are multiple values, right? Every value is being divided by 10. Now what we have to do is, for blocked artery, so we will be focusing on the blocked artery first. So we have to calculate the weighted frequency of yes and no. So for calculating that, we have to get this formula filled. This formula is proximity of yes divided by all proximities for calculating the yes, and similarly for no, it will be proximity of no divided by all the proximities. So now, because there is this third column, we will focus on the third one, right? And for this third one, we will pick the values from here: 0.1, 0.1, 0.8. So for our yes, uh, we have this value of 0.1, right? So no, yes, no, and we have the three values as 0.1, 0.1, 0.8. So what we have to do now is we have to multiply this. Proximity is 1 by 3, obviously, because 1 out of 3 is yes. So 1 by 3 into the weight of yes. The weight is 0.1, right? Because the center number is 0.1. So we will be multiplying 1 by 3 by 0.1, and we will get this 0.03. So this is how we calculate the weight for yes. So the weight of yes is 0.03. Similarly, when we calculate it for no, the no's value will be multiplied by. So what we have to do is, I forgot to mention one thing, that for all the proximities, what we will do is we will add all the points. So 0.1 plus 0.1 plus 0.8. So this is how we will do, and this will be equal to 0.1 upon 1, which is actually 0.1 only. So that is why 1 by 3 into 0.1. And similarly for no, it will be 0.1 and 0.8, and adding that, you will get this thing as um, 0.9, right? So you can consider this one also, because these two are actually same. So 0.1, 0.1, 0.8, and you can do the same for this thing also during the yes. So 0.1, 0.1, 0.8 will be added, and the values will be correspondingly taken. And similarly for no, the value will be 2 by 3, because there are no is coming twice, right? So 2 by 3 into 0.9. Why? Because the sum of 0.1 and 0.8 will be done, and divide by 1. So total of all these 3 points. So 2 by 3 into 0.9 is 0.6. So the more weight is
with the no, so the value is filled out to be no. We had also filled a no initially because we were using the mode technique, right? So that kind of a thing is true, and so no is fine. Now we will have to focus on the weight. For getting the weight, we will what we will do is we will multiply this thing. So we will take these three values and we will multiply them with every number to get the weighted average. So 125 into zero point 0.1 plus 180 into zero point 0.1 plus 210 into zero point 0.8. So the value is 198.8. So this 198.8 will come at the fourth place. So you have to do this multiple times. So now that we have revised our guesses, so obviously initially we had written the median value of 180, if you remember, and that 180 has been updated to 198.5. This has been updated. So now we built a random forest, run the data through the trees, recalculate the proximities and recalculate the missing values. Now we will do this 6 or 7 times until the missing value converges. So this means simply that because we have only uh, built this random forest tree once, we have to get multiple times this thing done. So random forest will be generated multiple times, the samples will be calculated multiple times, and based on that the prediction, once it reaches convergence means that again and again 198.5 will come, and then only we will stop. Let's say out of 7 or maybe 10 attempts, in the last we are getting 198.5 multiple times. So it means that because same number is coming again and again, the value has converged. So that's how we will fill the missing values, or we will update our random forest using this proximity matrix. So that's all for random forest. Now if you have any doubt, you can ask. Anyone, any doubt?